Hello, dear students. Now we are solving one more example of the projectile motion. Let us read the example first. Here, no one diagram is given for the example. We have given the example in a text manner. Okay, now see here, guys. What is mentioned in the example? A gunman fires a bullet with a velocity of 100 meter per second. Okay, 50-degree upwards from the top of a hill, 300-meter high, to hit a bird. Okay, the gunman is standing at the top of the hill, okay, which is 300-meter high. Okay, what he have done, he have just fires a bullet with a velocity of 100 meter per second, 50-degree upwards. Okay, for what? To hit a bird. The bullet misses its target and finally lands on the ground. Okay, so what you are supposed to calculate? The maximum height reached by the bullet, and thereafter total time to flight and velocity with which the bullet hits the ground. Okay, three things we have been asked to find. Okay, the time of flight, maximum height reached by the bullet, and third thing we have been asked, velocity with which the bullet hits the ground. Okay, मतलब final velocity मतलब striking velocity of strike of the bullet we are supposed to find out. Okay, and along with that time of flight and maximum height reached by the bullet. Okay, ठीक है. What we are going to do firstly we are drawing a diagram. With the help of that we will understand the situation. Okay, now see here, guys. At a height of how much? 300 meter. Okay, ये जो height है it is a 300 meter. Okay, one man is standing. Okay, I'm naming this point as a point A. Okay, so at this height man have fired a bullet. Okay, तो उसका एंगल कितना है? ये डायरेक्शन है उसका, एंड विद द वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड एंड एट एन एंगल 50 डिग्री. Okay, so the path the bullet have followed is like this. Okay, finally it have strike on the ground. At a point B with the striking velocity, obviously it is a VB that we have asked to find out. Yes, what next? Thereafter we have to find out the maximum height reached by the bullet above the ground. Okay, तो अभी यहाँ से जो टोटल हाइट है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बुलेट, वी आर सपोज टू फाइंड आउट दिस हाइट. ओके, तो अप टू दिस डिस्टेंस. ओके, इसको मैं दो हाइट में डिवाइड कर लेता हूँ. ये तो है 300 मीटर. ओके, और यहाँ से जो पॉइंट ए है इसके ऊपर ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे बुलेट है. बुलेट इज द ऑब्जेक्ट एट दिस सिचुएशन. तो दिस हाइट ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था, इसके लिए एक फॉर्मूला, इट इज़ एच मैक्स. ओके, तो एच मैक्स का फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था. सो इट इज़ नथिंग बट द if someone is reminding it, then surely I will like to
listen from the student if it is a online lecture. So now I'm just recording it, so let me tell you guys. So it is nothing but the u square sin square theta, okay, upon 2g. ओके चलो ठीक है, ये तो अपना मैक्सिमम हाइट रीच बाय द ग्राउंड, ये तो यहाँ पे इजीली सॉल्व हो गया है ना. तो ये जो कैलकुलेट करना था टोटल हाइट, अभी मैक्सिमम हाइट रीच बाय, तो ये तो हो गया अपना मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू 300 प्लस एच मैक्स. ओके, एंड एच मैक्स इज u square sin square theta अपॉन 2g. ओके, तो ये u स्क्वायर कितना है 100, sin square theta is 50 degree and 2 into 9.81. So here we are getting a value of h max, it is 299.09. Hence we are getting a maximum height from the ground reached by bullet above ground is equal to 300 plus 299.09 meter. Okay, it will be a 599.09 meter. ओके चलो ठीक है, ये वी हैव सॉल्व द एग्जांपल फॉर अ 2 मार्क. 2 मार्क का तो आउट ऑफ 6 मार्क्स वी हैव सॉल्व. अब ये टोटल टाइम ऑफ लाइट और वेलोसिटी वी आर सपोज टू फाइंड आउट. ओके, सो आफ्टर सॉल्विंग द मल्टीपल एग्जांपल्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स मे बी हैविंग आइडिया. ओके, आफ्टर दिस चलो ठीक है, फिर बार हम लोग एक अच्छी तरीके से इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है इसको. लेट मी जूम द स्क्रीन. ओके फाइन. अच्छा चलो इसके आगे देखते हैं अभी इसको कैसे सॉल्व करना है. नाउ चेक इट गाइज. जो सिंपली जो एग्जाम्पल के स्टेप्स फॉलो करते हैं वो स्टेप्स हमें फॉलो करना है. स्टेप 1, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. ओके, तो यहाँ पे इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है, ओके, इट इज गोइंग इन अ राइटवर्ड डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा अपना पॉजिटिव. एंड ऑब्वियसली वो कौन सा टाइप का मोशन है, व्हाट यू आर सपोज टू राइट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन. ओके, हाँ, व्हाट नेक्स्ट. तो फॉर दिस एस इज इक्वल टू वी टी. नाउ एस इज नोन टू अस, horizontal displacement is known to us from this point to this point distance. No, it is not given to us, so let me write it down, question mark for that. V is given to us. No, it is also not given to us. Yes, it is given to us, initial velocity. So what we are supposed to write over here, it's a, we have to write a horizontal component over here. It is nothing but the 100 cos 50, right? Cos 50 degree. It becomes 64.28 meter per second. And what we are supposed, चलो ठीक है, इसको एक डायग्राम में भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, है ना. 100 cos 50 डिग्री. ओके, वर्टिकल कंपोनेंट हो गया इसका 100 sin 50 डिग्री. ओके, यस फाइन. अभी चलो ठीक है, वेलोसिटी तो मिल गया. टाइम, बट टाइम इज स्टिल अननोन टू अस. चलो ठीक है, आगे तो बढ़ते हैं, देखते क्या क्या होता है आगे. अभी हियर थोड़ा सा मैं
एक अलग एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहा हूँ फॉर अ रिप्रेजेंटेशन, है ना। तो मैं इसे वर्टिकली इसको सेग्रीगेट कर देता हूँ। स्टेप 2, वर्टिकल वेलोसिटी, ओके। वर्टिकल वेलोसिटी कैसे जा रहा है? इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज गोइंग अगेन इन अ अपवर्ड डायरेक्शन, ओके। इसका जो कंपोनेंट है वर्टिकल का, प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कंपोनेंट जा रहा है, जो 100 का वर्टिकल कंपोनेंट जा रहा है अपवर्ड, ओके। ऑब्वियसली डायरेक्शन यहाँ पे सेट होगा पॉजिटिव, अपवर्ड विल बी पॉजिटिव, एंड इट इज अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, okay. So for this let me write down the value formula of s is equal to ut plus half gt square, gt लिखो, at लिखो, बाद में उसका वैल्यू पुटअप कर देना है फिर, ओके। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस? पहले तो उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखो। डिस्प्लेसमेंट फाइनली हुआ कहाँ पे? देखो, स्टिल द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज अपवर्ड, ओके। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो है फ्रॉम ए टू बी, इट इज डाउनवर्ड डायरेक्शन। फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी द डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो हियर लेट मी राइट डाउन एस इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो है उसका जो साइन आएगा इट विल बी अ माइनस 300 फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम ए टू बी द वर्टिकल डिस्टेंस इज 300 मीटर, ओके। सो इनिशियल वेलोसिटी लिख लेते हैं अभी। इनिशियल वेलोसिटी कितना है बेटा? यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी की बात करें, वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए हमें 100 का, तो इट इज गोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो ही इट विल बी 100 sin 50, okay. We are getting that value 76.6 meter per second, ओके। चलो, वैल्यू ऑफ यस इज नोन टू अस, वैल्यू ऑफ यू इज नोन टू अस। टी का वैल्यू पता है? नो, टी का वैल्यू तो हमें पता है नहीं। बट व्हाट अबाउट ए? मतलब व्हाट अबाउट ए? नथिंग बट द एक्सीलरेशन, नथिंग बट द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन एट दिस केस, ओके। तो उसका डायरेक्शन क्या है बेटा? एक्सीलरेशन अभी कैसे जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है। यस, इट इज गोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ वर्टिकल वेलोसिटी, ओके। तो इसका मैं क्या लिखूँ? इट इज माइनस, ओके। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस लिखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है, नो नीड टू थिंक मच, ओके। वी नो द कंसेप्ट नाउ। ऑपोजिट डायरेक्शन है तो वी हैव टू यूज द माइनस साइन, ओके। तो अभी इक्वेशन फिल कर देते हैं हम लोग। -300 इज इक्वल टू यूटी, यूटी मतलब क्या रही है? 76.6 इंटू टाइम, ओके, एंड माइनस 9.81। अच्छा, इसको हाफ से मुझे डिवाइड करना है, चलो ठीक है, 9.81 2 कर देता हूँ, ओके। सो हाफ जी हो गया ये इंटू टाइम का स्क्वायर। Oh, great, we got the equation in terms of t, okay. So here after solving this we can get easily the value of t over here, so that we are getting value 18.86 second. Let me make a box for the answer, okay. तो टाइम का वैल्यू यहाँ पे कितना मिला? 18.86 सेकंड वैल्यू मिला है हमें। एंड यू नो इट गाइज कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिखते हैं फॉर पॉइंट बी, ओके, तो इट विल बी वी बी एक्स। वी नो इट गाइज कि वी बी एक्स विल बी इज इक्वल टू वी ए एक्स। ऑब्वियसली वी नो दैट वैल्यू, इट विल बी अ यू, इट विल बी नथिंग बट द 100 cos 50 degree, if I am not wrong. Yes, it is a 50 degree, okay. So we are getting a value of VBX is equal to 64.28 मीटर पर सेकंड, ओके। चलो ठीक है, अभी ये VBY कैसे पता करें?
वी बी वाई इज नथिंग बट द, अभी ये डायरेक्टली मैं इसके लिख देता हूँ कि u प्लस ए टी लिखना है. ओके तो ए तो क्या है यहाँ पे, नथिंग बट द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. तो ये प्लस लिखना माइनस लिखना चेक करते हैं, है ना. यू कैसे जा रहा है, यू कैसे जा रहा है यहाँ पे देखो, डायरेक्शन ऑफ यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी. ओके ये जा रहा है अपवर्ड, तो ऑब्वियसली मुझे अपवर्ड जो भी टर्म्स है वो प्लस लिखना है. इट इज़ 76.6 मीटर पर सेकेंड. ओके ये वर्टिकल वेलोसिटी है एट अ इनिशियल लेवल. ओके एट अ पॉइंट ए, दिस यू. ओके देयर आफ्टर एक्सिलरेशन इज गोइंग इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो ये माइनस आएगा, माइनस 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एंड टाइम, यस टाइम भी हमें पता है, टाइम कैलकुलेट कर लिया है 18.86 मीटर पर, नॉट अ मीटर पर सेकंड, इट्स अ सेकंड ओनली. 18.86 सेकंड. यस व्हाट नेक्स्ट. चलो वी बी वाई यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगा, कैसे चेक करो. वी बी वाई विल बी 76.6 minus 9.81 into 18.86. okay so here we are getting a value minus 108.42 मीटर पर सेकंड. ओके तो ये हो गया, माइनस का मतलब क्या, डाउनवर्ड काम करेगा, 108.42 मीटर पर सेकंड डाउनवर्ड. ओके ये जाएगा, पॉजिटिव मिला है मतलब राइटवर्ड. यस गाइस नाउ अभी व्हाट वी आर सपोज टू डू, अभी ये हमें क्या लिखना है, वी बी कैलकुलेट करके देना है. वी नो इट, उसके स्टेप्स क्या है, वी बी एक्स का स्क्वायर प्लस वी बी वाई का स्क्वायर. ओके एंड थीटा, थीटा बी जो लिखेंगे हम लोग tan इनवर्स ऑफ VBY upon VBX. Okay, so by putting the values in this, we are getting a value of VB is equal to 126.04 and theta yes guys we have found the correct values over here. We are checking into the solution. Value of theta we found 59.34. degree. I hope in this example also you have found all the steps, you found how to deal with this example. Okay, see you in the next example guys. Bye.